In the previous video lecture, we have discussed process of money creation, and in this video lecture, we will discuss tools of monetary policy, or we can say measurement or instruments of monetary policy. Basically, there are two types of tools. First, quantitative or traditional measure, and second is qualitative and selective measures. Let's discuss one by one. First is quantitative measures. In quantitative measures, we will study open market operation, discount rate, CRR, we have discussed, and others. In others, we will study about SLR, about repo rate, about reverse repo rate. We will study. These are all quantitative measures. So let's discuss one by one. First is open market operations. Open market operations is that market where securities are sold and purchased. RBI sells or buy government securities in open market depend upon it wants to increase the liquidity or reduce it. इसमें क्या करती है RBI? या तो वो सेल करेगी या वो परचेज करेगी. किसे? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को. किस लिए करती है? सेल कब किया जाता है? हम सेल करके क्या लेते हैं? पैसे लेते हैं, राइट. तो अगर मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में पैसा बहुत ज़्यादा है तो उसको अपनी तरफ खींचने के लिए वो क्या करना शुरू करेगी? सेल करेगी या परचेज करेगी? डेफिनेटली वो उसको सेल करेगी, राइट, ताकि पैसा किसके पास आ जाए? आरबीआई के पास. और अगर आरबीआई को लगता है कि इकोनॉमी में पैसा है ही नहीं, मनी सप्लाई बहुत कम हो गई है, तो वो क्या करना शुरू करेगी? परचेज करना शुरू कर देगी. किसे? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को. दिस इज जस्ट आवर ओपन मार्केट ऑपरेशन. RBI sells government securities because it reduces liquidity. Liquidity means stock of money in the economy. अगर RBI सिक्योरिटीज़ को सेल करेगी तो इससे क्या होगा? लिक्विडिटी कम हो जाएगी हमारी इकोनॉमी में. सो ओवरऑल इट रिड्यूसेस द मनी सप्लाई अवेलेबल विद द बैंक, रिड्यूस द कैपिटल अवेलेबल फॉर लैंडिंग एंड इंटरेस्ट रेट गोज अप. हम यहाँ देख सकते हैं अगर आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ सेल करती है तो पैसा वो अपनी तरफ खींचती है, तो मार्केट में पैसा कम हो जाएगा, यानी कि जो लिक्विड पोजीशन है वो डाउन होनी शुरू हो जाएगी. इससे मार्केट में पैसा रहेगा ही नहीं, और जब मार्केट में पैसा ही नहीं होगा तो लोन भी नहीं दे सकती हमारी कमर्शियल बैंक. लोन नहीं देगी तो उससे क्या होगा? कमर्शियल बैंक को पैसा कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट रेट्स को इंक्रीज करना पड़ेगा. So this is the open market operation in case of selling, and in case of buying, increase the money supply available with the banks. अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को परचेज किया जाता है, कौन करेगा? आरबीआई अगर उसको परचेज करती है सपोज, तो क्या होगा? मार्केट में मनी सप्लाई ज़्यादा हो जाएगा, और जब मार्केट में मनी सप्लाई ज़्यादा होगा तो लोगों के पास पैसा होगा, कमर्शियल बैंक के पास पैसा होगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोन दे सकेगी और इंटरेस्ट रेट को भी रीज़नेबल ही रखेगी, या इंटरेस्ट रेट हमारा ज़्यादा नहीं हो पाएगा. दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशन इन केस ऑफ परचेजिंग. Increase the money supply available with the banks, so interest rate moves down definitely, and business activities like new investment, capacity expansion goes up. This is our open market operation, which is related with the terms of selling and purchasing of government securities, and all these activities are performed by RBI. The sale of government bonds and securities affect both demand and supply of credit. How supply of credit? The government bonds are bought by checks drawn on the commercial banks, right, in favor of the central bank. So money gets transferred from buyer's account to central bank account. So this reduces total deposits with the commercial bank and their cash reserves, and also their cash creation capacity. When commercial banks buy, their cash reserve goes down, leads to fall in the flow of credit. अगर कमर्शियल बैंक ही परचेज करने लग जाए तो क्या होगा? कैश रिजर्व कम होगा, और जिससे मनी क्रिएशन प्रोसेस जो है वो भी डाउन हो जाएगा. क्यों? क्योंकि वो क्रेडिट पे तो नहीं दे पा रही है हमारे कस्टमर्स को. नेक्स्ट है डिमांड फॉर क्रेडिट. सेलिंग ऑफ बॉन्ड्स बाय सेंट्रल बैंक, इंटरेस्ट रेट गोज अप. अगर सेंट्रल बैंक सेल करती है बॉन्ड्स को, राइट, तो क्या होगा? पैसा उसके पास आएगा एंड इंटरेस्ट रेट गोज अप, रिड्यूसेस डिमांड फॉर क्रेडिट. तो क्रेडिट पे जो डिमांड करते हैं वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएगी.
नेक्स्ट है हमारे पास इसके लिमिटेशंस। अब ओएमओ की लिमिटेशंस क्या क्या हैं? हमने ये तो देख लिया कि हम सेल कर रहे हैं, हम परचेज़ कर रहे हैं। सेल करने से हमारी लिक्विडिटी कम हो रही है और परचेज़ करने से हमारी लिक्विडिटी इंक्रीज़ हो रही है और वहाँ से हम इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल कर रहे हैं। बट स्टिल देयर इज़ अ लिमिटेशन इफ़ कमर्शियल बैंक पोसेसेस एक्सेस लिक्विडिटी। अगर लिक्विडिटी ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है देन ओएमओ आर नॉट इफेक्टिव। तो ओएमओ ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगा। Popularity of government bonds and securities matters. They are not so popular as they have a low rate of return. क्योंकि इनका जो रिटर्न है, रेट ऑफ रिटर्न वो बहुत लो है, तो इसलिए इतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं है और इनको कोई ज़्यादा परचेज़ करना पसंद नहीं करता, इसीलिए भी ये एक लिमिटेशन है। इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज लाइक आर इंडिया वेयर बैंकिंग सिस्टम आर नॉट वेल डेवलप्ड एंड इंटीग्रेटेड, दे हैव लिमिटेड इफेक्टिवनेस। In a unstable market economy, OMO is not effective due to lack of demand for credit. क्योंकि क्रेडिट पे डिमांड की तो जो इफ़ेक्टिवनेस है, या हम कह सकते हैं कि लोग डिमांड कर रहे हैं क्रेडिट पर, वो बहुत कम है, उसकी कमी है और उसका मेन एक रीज़न भी हमारा OMO हो सकता है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को सेल या परचेज़ करने की कोशिश करे, तो क्रेडिट पे नहीं दे सकते हैं, या हम कह सकते हैं डिमांड फॉर क्रेडिट कम है इन केस ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशन। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिस्काउंट रेट, इसे हम बैंक रेट भी कहते हैं। लेटेस्ट बैंक रेट ये नहीं है हमारी, लेटेस्ट बैंक रेट मैंने प्रीवियस वीडियो में आपके साथ शेयर की है, आप वहाँ से देख सकते हैं। बैंक रेट इज़ द मिनिमम रेट एट विच सेंट्रल बैंक प्रोवाइड्स लोन टू कमर्शियल बैंक। सपोज़ ये हमारा बैंक है जिसे हम कमर्शियल बैंक कहेंगे, ये हमारा RBI है, और उससे पहले अगर मैं बात करूं तो मेरे कस्टमर्स हो सकते हैं। दिस इज़ कस्टमर, दिस इज़ कमर्शियल बैंक एंड दिस इज़ RBI। कमर्शियल बैंक क्या करते हैं? RBI से लोन लेते हैं किसी एक इंटरेस्ट पे, सपोज 10% बैंक रेट है, तो कमर्शियल बैंक क्या करते हैं? उसी लोन को जब कस्टमर को देते हैं वो तो 10 पर नहीं 12 पर देंगे, इसे हम क्या कहेंगे? बैंक रेट। अगर RBI इस रेट को इंक्रीज़ कर देता है, सपोज़ RBI से लोन लिया जाता है 12%, तो कमर्शियल बैंक भी जब कस्टमर को लोन देगा तो वो भी बढ़ाकर ही देगा, वो 14% पर दे सकता है उसको। तो ये हमारा बैंक रेट होता है, इसे हम डिस्काउंट रेट भी कहते हैं। कैसे ये वर्क करता है, लेट्स सी। Bank rate is the minimum rate at which central bank provides loan to commercial bank. It is also called discount rate, or it is the interest rate charged over borrowings made by the commercial bank from the central bank. Central bank can change this rate. Only RBI can change this rate डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ द क्रेडिट फ्लो। पहले RBI ये चेक करेगा कि मार्केट में पैसा कैसा है। अगर उसे लगता है कि मार्केट में पैसा बहुत ज़्यादा है तो वो बैंक रेट को कम कर देगा। जैसा हमने अभी यहाँ पढ़ा, कस्टमर, कमर्शियल बैंक और RBI। पहले सपोज़ पैसा बहुत ज़्यादा है मार्केट में, तो RBI क्या करेगा? इसको कम कर देगा, राइट। तो पैसा बहुत ज़्यादा है, अगर कमर्शियल बैंक के पास पैसा बहुत ज़्यादा है तो वो क्या करेगा? कस्टमर को कम रेट पर देना शुरू कर देगा, और अगर लगता है कि कमर्शियल बैंक के पास पैसा है ही नहीं तो इंटरेस्ट रेट को वो बढ़ाना शुरू कर देगा। लेकिन दोनों के अपने अपने नुकसान भी होंगे। अगर इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया तो लोन हमारे पास कम से कम जाएगा, कस्टमर कम से कम आएंगे हमसे लोन परचेज लेने के लिए, ठीक है। तो ये बैंक रेट हमारा वर्क करता है। फॉल इन बैंक रेट, बैंक रेट अगर कम होती है, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, राइट, और अगर बैंक रेट ज़्यादा होती है हमारी, देन कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। दिस इज़ आवर बैंक रेट। Rise or fall in the rate of central bank rises its rate leads to rate change of commercial bank. So demand for funds by borrowers get affected. Bankers' lending rates get adjusted to deposit rates. Rise in deposit rate turns borrower into depositors. Rise in bank rate reduces the net worth of government bonds against which commercial banks borrow funds from the central bank. They find it difficult to maintain high cash reserve. तो ये कुछ एक्शन थे सेंट्रल बैंक के which affect the flow of credit. Now limitation of bank rate policy when commercial bank approach a central bank for borrowings. It can work effectively. सिर्फ तभी वर्क कर सकता है जब कमर्शियल बैंक अप्रोच करता है सेंट्रल बैंक को बोरोइंग के लिए। कमर्शियल बैंक आर मोर डिपेंडेंट अपॉन सेंट्रल
upon capital market. Share of banking credit has declined. Changes in bank rate must influence interest rate. But these days, commercial bank hold on to their interest rate then get affected by bank rate. Now CRR. CRR we have discussed. CRR में क्या होता है, जो टोटल डिपॉजिट्स होती हैं उसका कुछ पोर्शन CRR की फॉर्म में जाता है, किसके पास जाता है, RBI के पास जाता है, ठीक है। वो कमर्शियल बैंक CRR का कुछ पोर्शन RBI के पास सबमिट करवाते हैं। अगर CRR ज़्यादा है तो कमर्शियल बैंक के पास पैसा कम है लोन देने के लिए, लेकिन अगर CRR हमारी कम है तो CRR कमर्शियल बैंक के पास पैसा ज़्यादा है लोन देने के लिए। तो RBI अकॉर्डिंगली CRR की रेट्स को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करता है, राइट। अगर RBI को ये लगता है कि कमर्शियल बैंक के पास पैसा बहुत ज़्यादा है तो CRR की रेट को वो इंक्रीज़ कर सकता है और वाइस वर्सा उसको वो डिक्रीज़ भी कर सकता है। All commercial banks are required to keep a certain amount of its deposits in cash with RBI. This percentage is called CRR. This ratio is calculated to prevent shortage of cash, to control money supply. In contraction policy, the bank raises the CRR. In expansionary policy, bank reduces the CRR. A hike in CRR will lead to high interest rate, credit rationing, huge decrease in investment, and large reduction in national income and employment.